Good morning, students. Today we are going to take our next chapter of our first term syllabus, and that is chapter 9, Reproduction in Animals. Students, you have learnt about the processes of digestion, circulation and respiration in your previous classes. These processes are essential for द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल. हमें पता है हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं, जैसे कि डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, रेस्पिरेशन है, वो सभी हम एक इंडिविजुअल को सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स भी पढ़ा था. रिप्रोडक्शन इज असेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीसीज. स्पीसीज को की कंटिन्यूएशन के लिए, यानी कि वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन आगे बढ़ती जाए, उसके लिए रिप्रोडक्शन एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है. वी कांट इमेजिन इफ ऑर्गेनिजम्स हैड नॉट रिप्रोड्यूस. अगर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं होंगे, कंटिन्यू नहीं रहेंगे, तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. So, reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kinds of individuals generation after generation. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर सेम काइंड के जो इंडिविजुअल्स है वो कंटिन्यू रहते हैं, बनते रहते हैं, रिप्रोड्यूस होते रहते हैं. और वी कैन ऑल्सो से दैट रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. Students, we have learned about the reproduction in plants in our previous class. Now we are going to learn reproduction in animals. Students, we also know that there are basically two modes of reproduction, and these are sexual reproduction and asexual reproduction. There is a difference between sexual reproduction and asexual reproduction. In sexual reproduction, two parents are involved. Two parents are involved to produce young ones. In asexual reproduction, new individual is produced by a single parent. In sexual reproduction, two types of gametes are produced which fuse to form a zygote. दो types के gamete, male gamete and female gamete, they get fused and form zygote. In asexual reproduction, gametes are not produced. In sexual reproduction, new individual is not exactly identical to any of the parent but has certain features similar to them. बिल्कुल exactly identical नहीं होते हैं, उनके features होते हैं. But in asexual reproduction, the new individual is identical to the parent. So let us start our next topic with asexual reproduction. In animals, male and females have different reproductive parts, or we can say that organs. In animals also produce gametes that fuse to form a zygote. These reproductive parts in animals ये क्या करेंगे? They produce gametes, और वो gametes fuse होके क्या बना देंगे? Zygote. It is the zygote which develops in a new individual, और ये zygote ही जो further आगे जाके new individual में develop हो जाता है. This type of reproduction beginning from the fusion of male and female gamete is called sexual reproduction. और इस type की reproduction जो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज होने से स्टार्ट होती है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है. अभी हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट्स, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन करते हैं फीमेल गैमेट्स. तो अब हम इन दोनों दो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. This is male reproductive organs. The male reproductive organs include a pair of testes, two sperm ducts and a penis.
द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स, यानी कि जो मेल गैमेट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म्स. मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस. Though sperms are very small in size, each has a head, a middle piece and a tail. ये जो हमारा डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दिस इज स्पर्म, दिस इज पेनिस एंड दीज आर टेस्टिस. और दिस इज द डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन स्पर्म. दिस इज स्पर्म डक्ट, not sperm, this is sperm duct, and this is the diagram of human sperm. अभी हमने देखा in human sperm there is a head, a middle piece and a tail. Each sperm is a single cell with all the usual cell components. जो ईच, ये जो हमारा ये स्पर्म है, ये क्या होते हैं? ये सिंगल सेल होते हैं और इसमें सारे जितने भी जो सेल कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स एंड अ यूट्रस. द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा. जो ओवरी है वो क्या प्रोड्यूस करेगी? फीमेल गैमेट मीन्स फीमेल. इसे हम फीमेल सेल भी बोल सकते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ओवा और एग्स. इन ह्यूमन बीइंग्स अ सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ. यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस. यूट्रस इज द पार्ट जहाँ पर बेबी की डेवलपमेंट होती है. लाइक द स्पर्म, एन एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल. दिस इज ह्यूमन ओवम. स्पर्म की तरह जो एग है वो भी क्या होता है? सिंगल सेल होता है. उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन. द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड एन ओवम. जो सबसे पहला स्टेप होता है रिप्रोडक्शन में, कैसे स्टार्ट होता है? विद द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, यानी कि विद द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. व्हेन स्पर्म्स कम इन कॉन्टेक्ट विद एन एग, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग. जब स्पर्म्स एग के कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें से एक स्पर्म एग के साथ फ्यूज कर जाता है. सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. और ये जो फ्यूजन होती है एग और स्पर्म की, ये क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस. इस दौरान स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस वो दोनों फ्यूज करके एक सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म कर देते हैं. दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट. और ये किसकी फॉर्मेशन करता है आगे फर्दर? फर्टिलाइज्ड एग, या उसको हम जाइगोट भी कह सकते हैं, जैसे डायग्राम में शो किया हुआ है. और ये फिर बाद में जाइगोट फॉर्म हो गया. द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन egg cell from the mother and a sperm cell from the father. फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है हमारा, उसके अंदर जो स्पर्म है वो फादर से और जो एग है वो मदर से, वो दोनों सेल्स क्या करते हैं? आपस में फ्यूज कर देते हैं, मीट करते हैं. सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर. इसीलिए जो नया इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर की होती है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फादर की होती है. फर्टिलाइजेशन जो है हमारी बेसिकली वो दो टाइप्स की होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. Fertilization which take place inside the female body is called internal fertilization. जो fertilization फीमेल बॉडी के अंदर होती है, inside the फीमेल बॉडी, वो क्या कहलाती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन. कुछ एग्जाम्पल है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के, लाइक ह्यूमन, काउ, डॉग, हैंस एक्सेट्रा. दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन.
उसके बाद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस outside the female body, or we can say that the type of fertilization in which the fusion of a male and a female gamete take place outside the body of the female। जो फ्यूज़न होगा मेल और फीमेल गैमेट्स का, यानी मेल और फीमेल सेल का, वो कहाँ होता है? वो होता है फीमेल बॉडी के, जो फीमेल है उसकी बॉडी के बाहर, आउटसाइड द फीमेल बॉडी। और इस टाइप की फर्टिलाइजेशन को कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स। ये किसके अंदर होती है? एक्वेटिक एनिमल्स के, जैसे फिश, स्टार फिश एट्सेट्रा, इनके अंदर ये हमारी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फर्टिलाइजेशन में हमने अभी पढ़ा था, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है? जाइगोट की, विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। और जो जाइगोट है वो बाद में क्या बनने लग जाता है? किस में डेवलपमेंट होने लग जाता, किस में डेवलप होने लग जाता है? वो एम्ब्रियो में। द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स। जो जाइगोट है वो डिवाइड हो रहा है, रैपिडली डिवाइड होता है और एक सेल्स ऑफ बॉल में कन्वर्ट, मतलब बॉल ऑफ सेल्स, एक बॉल सी होती है जैसे सेल्स की, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और हमने पढ़ा था अपने सेल वाले चैप्टर में कि जो सेल है वो क्या करते हैं, बाद में बहुत सारे सेल मिलकर क्या करते हैं? टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऐसे ही करके पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो। और जो ये डेवलपिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, सेल्स, पहले बॉल ऑफ सेल बनी, फिर उससे टिश्यू बने, उससे ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम बने, ये सारे जो प्रोसेस है, ये जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, ये क्या कहलाता है? एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इनटू द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। जो एम्ब्रियो है वो कहाँ पर जाता है? फिर यूट्रस की वॉल्स में जाता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए, आगे और ज़्यादा डेवलप होने के लिए। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इनटू द यूट्रस। और यूट्रस में जाने के बाद जो एम्ब्रियो है हमारा वो कंटिन्यूसली डेवलप होता रहता है। इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें बॉडी पार्ट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर एक्सेट्रा। बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे बनने लग जाते हैं। उसके बाद द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई। और जब वो स्टेज आ जाती है, जब हम एक जो एम्ब्रियो है उसके जो सारे के सारे बॉडी पार्ट्स इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? फीटस। When the development of the fetus is complete, the mother gives birth to the baby। और जब ये फीटस की डेवलपमेंट पूरी कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है वो, तो उस टाइम पे बाद में जो मदर है वो बेबी को बर्थ दे देती है। अभी हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है, उससे कैसे फीटस बनता है, फीटस से कैसे बेबी बनता है। अब हमने देखा होगा कि बहुत से एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स हैं जो बेबी को बर्थ देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्ट बेबी को बर्थ नहीं देते हैं, वो एग ले करते हैं। और वो एग क्या होता है? मैच्योर होने के बाद हैच होता है, और उसमें से जो बेबी है वो बाहर आता है। तो इसी जैसे लाइक कैट, डॉग, ह्यूमन, दे ऑल आर गिव बर्थ टू their baby, their young ones, but some animals like hen, duck, they all give birth to egg, and after some time जो एग है वो हैच होगा, और उसमें से जो बेबी है, हैन या डकलिंग, वो बाहर आएगा। इस बेसिस पे हमने एनिमल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, दो कैटेगरीज में। वी कैन से दैट दो कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया गया, एंड दीज कैटेगरीज आर विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स।
The animals which give birth to young ones are called viviparous animals. वो एनिमल्स जो यंग वंस को बर्थ देते हैं यानी कि बेबी को बर्थ देते हैं वो विविपेरस एनिमल्स कहलाते हैं. एंड द एनिमल्स दोज हु ले एग आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स. और जो एग देते हैं वो ओविपेरस एनिमल्स कहलाते हैं. That's all for today, students. In our next class we will learn about more about this chapter and also asexual reproduction. Till then, keep revising the complete chapter. Thank you.